پاسٹر سلاس ہیں، اور آئیے آج ہم خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ دیکھیں گے اور خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے دعا کے تعلق سے۔ آج کا ہمارا موضوع یا عنوان ہے پر اثر دعا، یعنی کیسے ہم افیکٹو دعا کر سکتے ہیں، کیسے ہماری دعائیں جو ہیں وہ خدا تک پہنچ سکتی ہیں، اور کیسے زیادہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ اثر دکھا سکتی ہیں۔ بعض اوقات ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں لیکن ہمیں ان کا اس طور پر جواب نہیں آتا یا جواب نہیں ملتا، لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے ہماری دعا جو ہے وہ پر اثر ہو سکتی ہے، کیسے ہم اپنی دعا کو زیادہ افیکٹو کر سکتے ہیں۔ تو آئیے میرے عزیزو، آج خدا کے کلام میں سے ہم اس بات کو دیکھیں گے۔ آئیے غور سے سنیے، ہم خدا کے کلام میں سے لوکا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 21ویں آیت پڑھیں گے، اور اس حوالہ سے ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنی دعاؤں کو زیادہ پر اثر بنا سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا اور یسوع بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ دعا کر رہا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا۔ خدا کا کلام پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ جب یسوع اس سے پہلے کہ اپنی عملی خدمت کا آغاز کرتا، تو یسوع ہم سب جانتے ہیں کہ وہ یوحنا اصطباغی کے پاس آیا دریائے یردن کے اندر، اور اس نے وہاں پر پانی کا بپتسمہ لیا، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا اور یسوع نے بھی بپتسمہ لیا، تو یسوع نے کیا کیا؟ یسوع نے دعا کی۔ وہ دعا کر رہا تھا، اور جیسے ہی یسوع نے دعا کی تو لکھا ہے کہ آسمان کھل گیا۔ اور آج ہم اسی دعا کے بارے میں سیکھیں گے کہ یہ کون سی دعا ہے جس سے آسمان جو ہے وہ کھل جاتا ہے۔ یہ کون سی دعا ہے کہ جس کو کرنے سے خدا اپنا آسمان کھول دیتا ہے اور ہمارے لیے جواب آتا ہے، یا ہمارے لیے برکات آتی ہیں، یا ہماری مانگی گئی دعا جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ آسمان سے آتا ہے۔ اسی کے اوپر ہم دیکھیں گے۔ میرے عزیزو، ہم یسوع کی خدمت یا یسوع کی دعا پر جب نظر کرتے ہیں تو ہم یسوع کی زندگی میں ایک بڑی چیز کو دیکھتے ہیں جو ہمیشہ واضح رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یسوع نے جب بھی دعا کی، یا جب بھی کسی سے بات کی، یا جب بھی کسی کے سوال کا جواب دیا، تو یسوع نے خدا کا کلام استعمال کیا۔ جب بھی ہم خدا کا کلام استعمال کرتے ہیں تو ہماری گفتگو، ہمارا کلام یا ہماری دعا جو ہے اس میں افیکٹونیس آ جاتی ہے، یہ پر اثر ہو جاتا ہے، اس میں زیادہ زور آ جاتا ہے، اور یہ زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں، اور ہم یسوع کی آزمائش کے تعلق سے بھی جانتے ہیں۔ جب یسوع کو آزمایا گیا تو یسوع نے کلام کا ہی استعمال کیا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم کلام کا استعمال کرتے ہوئے اپنی دعاؤں کو زیادہ پر اثر کر سکتے ہیں۔ ایسی دعائیں جو شاید ہم بڑے سالوں سے کر رہے ہیں، ہمیں جواب نہیں مل رہا، آج ہم اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے اس بات پر غور کریں گے کہ کیسے ہم خدا کا کلام استعمال کرتے ہوئے دعا کر سکتے ہیں، اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ پر اثر کیسے ہو سکتی ہیں۔ آپ ہر روز رات کو جب آسمان کو دیکھتے ہیں تو آسمان ہمیں گہرا تاریک نظر آتا ہے۔ یہ آسمان اور بھی تاریک نظر آئے اگر اس آسمان میں ہماری دعاؤں کا کوئی سننے والا نہ ہو، لیکن خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس گہرے تاریک آسمان کے پیچھے وہ نور بن کے بیٹھا ہماری دعاؤں کا منتظر ہے، وہ ہمیں جواب دینے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری دعائیں پر اثر ہوں، وہ آسمان کو کھولنے کے قابل ہوں، اور یہ گہرا تاریک آسمان کھل جائے گا، اور نور اور برکات جو ہیں وہ آسمان سے نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ اس پوری کائنات پر دیکھیں، آپ زمین پر نظر دوڑائیں، آپ کو زمین کے اوپر بہت سارے ممالک نظر آئیں گے۔ ہر ملک کسی نہ کسی پوزیشن کے اندر ہے، اس کا کوئی نہ کوئی زمین کے اوپر مالک ہے، یا جس کو وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اور دوسرے لیول پر آتے چلے جائیں، ہمیں ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کے پاس بہت ساری ملکیت ہے، پراپرٹیز ہیں، جن کے پاس بہت کاروبار ہے،
जिनके पास बहुत जमीन जायदाद है। फिर ऐसे लोग भी हमें नजर आते हैं जो जमीन पर शायद उनके पास किसी किस्म की कोई मलकियत नहीं है, उनके पास कोई लैंड नहीं है, उनके पास कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, लेकिन खुदा का कलाम हम सभी ऐसे लोगों को ये दिलेरी बख्शता है कि जमीन पर चाहे हमारी कोई मलकियत नहीं है, लेकिन अगर हम दुआ करना जानते हैं, अगर हम खुदा को जानते हैं, तो आसमान हमारा है। हम जो है आसमान पर मलकियत रखते हैं। आसमान हमारे कहने से खुल सकता है, आसमान हमारे कहने से बंद हो सकता है। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। लेकिन इसके पीछे जो असूल काम करता है वो यही है कि पुरअसर दुआ। यीशु बपतिस्मा पाकर पुरअसर दुआ कर रहा था, और जब वो पुरअसर दुआ कर रहा था तो आसमान खुल गया, और जब आसमान खुला तो रूह कुदुस नाजिल हुआ, यानी बरकत नाजिल हुई, और खुदा का वादा जो है वो पूरा कर दिया गया। क्योंकि पुराने अहदनामा के अंदर बहुत सारी ऐसी नबियों की पेशन गोइयां थी कि एक वक्त आएगा कि खुदा अपना रूह जो है वो नाजिल करेगा। और जब यीशु ने बपतिस्मा पाया तो यीशु ने दुआ की, यीशु ने उन तमाम नबियों की पेशन गोइयों को याद दिलवाया कि यीशु खुदा के सामने यीशु ने जरूर ये दुआ की कि पुराने अहदनामे में लिखा है, अब तू अपना आसमान खोल दे। और जैसे ही यीशु ने ये इफेक्टिव दुआ की, पुरअसर दुआ की, तो आसमान जो है वो खुल गया है। आइए हम इसको अपनी अमली जिंदगी में चंद बाइबली मिसालों से इसको अपनी अमली जिंदगी में लेने की कोशिश करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, ज़बूर 91 में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि जो कोई हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सकूनत करेगा। अगर आप हक ताला के पर्दा के अंदर हैं, अगर आप उसमें सकूनत कर रहे हैं, तो आपके लिए वादा है कि कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना आएगी। तेरे करीब 10,000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ बहुत सारे गिर जाएंगे। अगर आप किसी मुसीबत का शिकार हो जाते हैं या आप किसी ऐसी सिचुएशन में गिरफ्तार हो जाते हैं, तो आप अपनी दुआ में इस खुदा के कलाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खुदा को कह सकते हैं कि खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि जो कोई हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा और कोई वबा उसके खैमा के नजदीक ना आएगी। अब आपके पास पूरा लीगल राइट है, आपके पास ये पूरा हक है कि आप खुदा को ये बात याद दिलवा सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, दुआ में कलाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही आप खुदा का कलाम इस्तेमाल करेंगे तो खुदा अपने वादों को पूरा करने में देर नहीं लगाता और आपके लिए आसमान जो है वो खुल जाएगा और आप उस सिचुएशन से डिलीवर हो जाएंगे और खुदा आपको अपना हाथ बढ़ाकर बचा लेगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तू अपने खुदावंद खुदा की इबादत करे तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत दे। हम में से ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि उनके किचन पर बरकत नहीं है या उनके रुपए पैसे में बरकत नहीं है। और अगर आप खुदा के इस कलाम पर पूरा उतर रहे हैं, आप उसकी इबादत कर रहे हैं, तो आप जब दुआ करें तो आप इस तरह दुआ कर सकते हैं कि खुदा देख, तेरे कलाम में लिखा है कि जो कोई तेरी इबादत करेगा तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। आपके पास लीगल राइट है और आप बड़ी दिलेरी के साथ ये दुआ कर सकते हैं। और जैसे ही आप खुदा का कलाम इस्तेमाल करेंगे दुआ के अंदर, तो खुदा का वादा जो है वो पूरा होगा और आपकी रोटी और पानी पर बरकत आएगी। ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएं। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अगर आपकी उम्मीद या आपकी मुराद बर नहीं आ रही तो आपके पास ये पैटर्न है, आपके पास आसमान खोलने का ये एक बड़ा असूल है कि आप पुरअसर दुआ करें। आप खुदा के हुजूर आए और खुदा से कहें कि खुदा देख, मैं तेरे हुजूर मसरूर हूँ, मैं तुझ में मसरूर हूँ, मैं तुझ में शादमान हूँ। अब तू मेरे दिल की मुराद पूरी कर। अब जो मैं अपने दिल की डिजायर रखता हूँ जो तेरे कलाम के मुताबिक भी है, अब तू उसको पूरा कर। लेकिन याद रखिए, इसके लिए जरूरी है कि आप खुदा में शादमान हो, इसके लिए जरूरी है कि आप उसमें मसरूर हों। अगर आप खुदा के कलाम पर अमल नहीं कर रहे, अगर आप उसमें मसरूर नहीं है या आप हक ताला के पर्दा में नहीं है, तो फिर ये वादे आपके लिए काम नहीं करेंगे। फिर आपकी दुआ जो है वो पुरअसर नहीं होगी, वो फिर
एक ऐसी दुआ हो जाएगी जिसके लिए आपको मुंतजर रहना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा और सालों साल आप दुआ करते रहेंगे, लेकिन आपके लिए आसमान नहीं खुलेगा। इसलिए पुरअसर दुआ का जो असूल है इस बात पर जुड़ा है कि आप खुदा के कलाम पर कितना अमल करते हैं। अगर आप खुदा के कलाम पर अमल कर रहे हैं और आप उस कलाम को दुआ में इस्तेमाल कर रहे हैं खुदा के हुजूर, तो आप पुरअसर दुआ कर रहे हैं, आपके लिए आसमान खुल रहा है, वरना आपके लिए आसमान जो है वो बंद रहेगा। हम उस खुदा की कुदरत तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर हमें जाना चाहिए या पहुंचना चाहिए, जैसे यीशु उस कुदरत तक पहुंचा, जैसे यीशु ने पुरअसर दुआ की। नए अहदनामा के अंदर हमें एक हवाला मिलता है, एक वाकया मिलता है कि एक सूबेदार यीशु के पास आ जाता है और वो यीशु से दरख्वास्त करता है कि मेरा नौकर जो है, मेरा खादिम जो है वो बीमार है। तो वो इस बात पर इसरार करता है, यीशु को वो कहता है कि अगर तू कह ही देगा तो मेरा खादिम जो है वो शिफा पा जाएगा। वो जानता था कि यीशु की जो दुआ है वो पुरअसर है, यीशु का जो कहना है वो पुरअसर है, और जैसे ही यीशु पुरअसर दुआ करेगा तो मेरा खादिम जो है वो जरूर शिफा पा जाएगा। और हम देखते हैं कि उसके लिए वैसा ही हुआ, क्योंकि वो जानता था कि यीशु के पास खुदा के वादे हैं, यीशु के पास खुदा का कलाम है, और यीशु जो है वो खुदा के कलाम पर अमल करने वाला शख्स है। इसलिए जब यीशु पुरअसर दुआ करेगा तो जरूर मेरा खादिम जो है वो शिफा पा जाएगा। आज हम अगर कमजोर हैं या हमारी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा या हमारी दुआओं का जवाब तवील होता जा रहा है, तो हमारे पास ये असूल है कि हम पुरअसर दुआ करना शुरू करें। हम अपनी दुआओं का रुख मोड़ें, हम अपनी दुआओं का पैटर्न जो है, नमूना जो है, इसको तब्दील करें और पुरअसर दुआ में दाखिल हो जाएं। और जैसे ही हम ऐसा करेंगे हमारे लिए आसमान खुल जाएगा, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा है, ये जिंदा है और खुदा किसी का तरफदार नहीं है। जब आप पुरअसर दुआ करेंगे तो यीशु की तरह आपके लिए भी आसमान खोल सकता है। तो आइए अपने आप को तब्दील कीजिए, पुरअसर दुआ में आ जाइए और इसके ऊपर तजर्बा कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए कि देखें कैसे खुदा आपके लिए अपना आसमान खोल देता है। खुदा आप सबों को इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आइए हम सब दुआ करें। मेहरबान जिंदा खुदा, तू जो कायनात का खालिक और मालिक खुदा है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए। खुदा खास तौर पर सारे प्लेटफॉर्म के लिए, नेशनल न्यूज चैनल के लिए खुदा, जिसकी वसातत से खुदा हम तेरे कलाम की मुनादी कर रहे हैं, लोग तेरे कलाम को सुन रहे हैं। खुदा हम इस चैनल पर तेरी बरकत चाहते हैं, और जितनों ने खुदा तेरे इस कलाम को सुना है उन सबों पर खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। और खुदा आज के बाद हमारे जहन तब्दील हो जाए और हम पुरअसर दुआ में दाखिल हो जाएं, हम इफेक्टिव प्रेयर में आ जाएं, ताकि खुदा हमारी दुआओं का जवाब आए। और जब हम दुआ करें तो हमारे लिए आसमान खुले, और खुदा जब आसमान खुले तो बरकत आए। हम खुदा ब्रेक थ्रू हासिल करें, हमारी खुदा दिल की मुरादें पूरी हों, और खुदा हमारी जितने खुदा हर्डल्स हैं वो सारे जाते रहें, और जमीन पर खुदा हम तेरे जवाब को, तेरी आवाज को सुनने के काबिल हो सके। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। या खुदा एक कलाम बहुतों के लिए बाइश बरकत हो, यीशु के नाम से, आमीन।